Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to learn all about medical billing versus medical coding. We have already read in our previous lectures what is medical billing and what is medical coding. But in this lecture we are just going to discuss these two terms in detail, like what is medical billing, what are the specific jobs for medical billing, what are the specific jobs in medical coding, and what is the salary of medical biller specialist, and what are the salary of medical coding specialists. So we are just going to discuss all this in this lecture. So this is lecture number 17th in the basic medical billing course. So let's start the lecture. So first of all, we have medical billing. What is the definition of medical billing? We have already read in previous 16 lecture. We are just having different kind of a stuff in medical billing. I guess you guys may have just understood what is this medical billing. But I'm just going to give you a little bit more detail about medical billing responsibilities, salaries, and other stuff as well in this lecture. So the definition is going to be medical billing is a process of submitting claims to insurance companies, government payers, example given Medicare, Medicaid, and patients for healthcare providers services provided. सो जैसा कि हम इंश्योरेंस को क्लेम सेंड करने के लिए क्लेम्स बनाते हैं, क्लेम्स के अंदर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका एड्रेस, उसकी आईडी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, ऑल द स्टफ विच इज included in the claim. So we are just sending the claims to the different insurances and getting the payments for the services which are rendered by the different providers. Okay, so it involves managing patients' billing inquiries, verifying insurance eligibility, and ensuring healthcare providers receive प्रॉपर रिइंबर्समेंट्स. सो इसके अंदर पेशेंट की एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है कि हाँ भी पेशेंट इस इंश्योरेंस के साथ एलिजिबल है कि नहीं है, और जो सर्विसेज एक प्रोवाइडर ने रेंडर की हैं किसी भी पेशेंट को, सो उसकी जो पेमेंट्स हैं वो उसको रिसीव हो जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट मेडिकल बिलिंग. ओके, सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन दिस वन. So medical billing, what is the importance of medical billing? Medical billing की importance क्या होती है? So there are different points. I have just added these points over here. So the first point is revenue generation. Main purpose medical billing का यही होता है कि हाँ भी जो भी services एक किसी भी provider ने render की हैं, so उनकी जो payments हैं वो उस provider तक पहुंच जाएं, उसको receive हो जाए. Okay, so accurate medical billing is crucial for healthcare organizations to generate revenue and maintain financial stability. It ensures that healthcare providers are paid for the services they deliver. जो भी प्रोवाइडर ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं किसी भी पेशेंट को, सो उनकी सर्विसेज मींस जो प्रोवाइड की गई हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं वो प्रोवाइडर तक पहुंच जानी चाहिए. मेडिकल बिलिंग के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, लाइक है कि कोई भी सर्विसेज किसी भी डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड किया, सो उनकी रिइंबर्समेंट्स जो हैं वो उसको मिलेंगी. तो इससे ये है कि एक रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, ठीक है, पेमेंट्स रिसीव होती रहेंगी उन प्रोवाइडर्स को जिन्होंने सर्विस देते हैं. सो द सेकंड इज पेशेंट एक्सपीरियंस. Efficient billing processes and clear communication with patients about their financial responsibilities contribute to a positive patient experience. इसके अंदर क्या है कि मीन्स एक efficient जब billing की जाती है, लाइक है कि clear communication होती है between the patient and the provider and the insurance companies. ठीक है, जब इन तीन चीज़ों मीन्स तीन जो करेक्टर्स होते हैं मेन रोल प्लेयर होते हैं उनके दरमियान जब एक क्लियर कम्युनिकेशन होती है तो इससे ये कि पेशेंट्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो इन्हांस होता है. लाइक यू गाइस कैन से दैट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव पेशेंट एक्सपीरियंस. ठीक है, जितनी भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लाइक ये है कि जो पार्ट पेशेंट ने पे करना है वो पे करेगा, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए. जो पार्ट हेल्थ के प्रोवाइडर को मिलना है वो मिलेगा, ठीक है, और जो इंश्योरेंस ने रिम्बर्समेंट्स में जो है कि जो प्रोवाइडर के ने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उनको जो मिलनी है, ये सारा जो साइकिल है क्लियरली और स्मूथली चलना चाहिए. सो इसके अंदर ये है कि पेशेंट का एक्सपीरियंस मीन्स पेशेंट जो एक्सपीरियंस होता है वो भी क्लियर होना चाहिए. क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोवाइडर, पेशेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज शुड बी वेरी क्लियर. Okay, compliance. Billing professionals must adhere to complex healthcare regulations and insurance guidelines to avoid legal and financial penalties. इसके अंदर यह है कि हाँ भी जब भी आप लोग पेशेंट्स का क्लेम बनाते हैं, पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ या इंश्योरेंस कंपनी के साथ, सो हिपा रूल्स की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि हाँ भी आप लोगों ने पेशेंट का जो डाटा है उसको सिक्योर करना है, प्राइवेट डाटा है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ अ डाटा विद एनीवन एल्स rather than इंश्योरेंस कंपनीज. और इनके दरमियान भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जिनके साथ हमें एडहेयर रहना पड़ता है, कंप्लाइंस रहना पड़ता है कि हाँ भी ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, किसी और को नहीं पता लगनी चाहिए. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ मेडिकल बिलिंग
इन द यूएसए एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर और यूएसए के अंदर मेडिकल बिलिंग का क्या स्कोप है, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दिस वन इन दिस। So the scope of medical billing in the USA remains significant due to the ever-growing healthcare industry. Here are the some key points to consider. मीन्स यूएसए के अंदर हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही फ्लरिश करती है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सिनेरियो हो, लाइक ये है कि इंसान बीमार होता है, ठीक है, उसको जाहिर सी बात है जाके किसी डॉक्टर से चेकअप करवाना है, ठीक है, और ये जो साइकिल है ये हमेशा चलता ही रहेगा। लाइक ये है कि नई नई बीमारियां आती हैं, नए नए मीन्स ये है कि उनको डायग्नोस किया जाता है, उसके लिए नए नए टूल्स बनाए जाते हैं। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं, ठीक है। मीन्स कोई भी मशीन हो उसको कभी ना कभी मीन्स ये है कि सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। सो इन ह्यूमन इज़ अ मशीन, okay, so they also require different kind of a stuff, like they also need good care। और उस केयर के लिए कौन से लोग होते हैं हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर? दीज आर द डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ओके। सो ये है कि इसके अंदर यही रूल चलता है कि हाँ भी कोई भी पेशेंट है तो उसने अपने डॉक्टर को चेक करवाना है। उसके बाद ये है कि जो रेवेन्यू साइकिल है, लाइक है, उसके अंदर पेशेंट की एलिजिबिलिटी हो गई, उसके डिफरेंट क्लेम्स बनने हैं, इंश्योरेंस को जाने हैं, और उसके बाद पेमेंट्स रिसीव होनी है, पेमेंट कलेक्ट होनी है। सो दिस इज एवरग्रीन system. Okay, so we can see that the first one is job opportunities. There is a continuous demand for medical billing specialists in various healthcare settings, including hospitals, clinics, physicians' office, and billing companies. क्योंकि ये एक एवरग्रीन, लाइक ये है कि यूएसए का हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एवर ग्रोइंग है, ठीक है। सो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें फिर इंक्लूड हो जाती हैं, लाइक ये है कि किसी ने किसी मीन्स डिफरेंट यहाँ पे जो रोल्स प्ले करने वाले करेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। मीन्स ये है कि जॉब्स की फैसिलिटीज़, जॉब्स की वैकेंसीज काफ़ी सारी क्रिएट होती हैं, लाइक यू गाइस कैन सी दैट इंक्लूडिंग हॉस्पिटल के अंदर। जाहिर सी बात है कि हाँ भी जब कोई भी फैसिलिटी देखी दी जाती है किसी भी पेशेंट को तो उसके लिए काफ़ी सारे लोग दरकार होते हैं। एज यू गाइस, असिस्टेंट होते हैं, मीन्स कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उसके साथ मीन्स क्लीनिंग स्टाफ होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स वैकेंसीज आर अवेलेबल एंड प्रोवाइडेड टू डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। क्लिनिक्स के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, एंड बिलिंग कंपनीज, और स्पेशली जो बिलिंग का एक इंस्टीट्यूट है या डिपार्टमेंट है, यू गाइस कैन से दैट, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है मेडिकल बिलिंग करना, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे लोग रिक्वायर होते हैं, लाइक ये है कि जो प्रोडक्शन टीम होती है वो एक अलग होती है, जिसके अंदर पेशेंट की जो है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, और वहाँ पर चार्जेस बनाए जा रहे हैं, क्लेम्स बनाए जा रहे हैं, उसके बाद पेमेंट पोस्टिंग की अलग है, एआर के लोग अलग होते हैं, ठीक है, क्रीडेंशियलिंग के लोग अलग होते हैं, मेडिकल कोडिंग के लोग अलग होते हैं। सो दिस is creating a lot of job vacancies or job availabilities in medical billing department, ठीक है। The second one is specialization. Some professionals choose to specialize in the specific areas of medical billing, such as Medicare billing, dental billing, or chiropractic billing, which can provide unique career opportunities. So इसके अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो specializations भी करते हैं, मीन्स स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन है। कुछ एआर के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ पेमेंट पोस्टिंग के अंदर स्पेशलाइज होते हैं, कुछ प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ बिलिंग मैनेजर्स होते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशंस आर अवेलेबल इन हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ यूएसए एंड पाकिस्तान, सच एज मेडिकेयर बिलिंग। मीन्स कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो मेडिकेयर का है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हर स्टेट के अंदर होता है, लेकिन ये कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, ठीक है। सो इसके अंदर वो मीन्स स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। डेंटल की एक अलग से बिलिंग होती है, ठीक है, उसके लिए स्पेशलाइजेशन कोई कर सकता है। कायरोप्रैक्टिक बिलिंग है। सो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ बिलिंग्स आर अवेलेबल, लाइक स्पेशलाइजेशंस आर अवेलेबल इन दिस यूएसए हेल्थ केयर सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। The third one is going to be technology. The healthcare industry is adopting electronic health records, EHR. We have already read this one in previous lectures, and medical billing software, leading to a need for professionals who can effectively use these tools. मीन्स इसके अंदर काफ़ी सारे ये है कि हेल्थ रिकॉर्ड्स को मीन्स ये है कि जाहिर सी बात है आप लोगों ने ट्रांसफ़र करना होता है। यू आर गोइंग टू सबमिटिंग द क्लेम्स टू डिफरेंट इंश्योरेंसेस एंड डिफरेंट प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो ये है कि उसके दौरान ये है कि आप लोगों को डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, और टेक्नोलॉजी इसके अंदर एडवांस से एडवांस होती जाती है, ठीक है। मीन्स पहले ये है कि कुछ प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑब्सलीट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, उसके बाद कुछ न्यू सॉफ्टवेयर, उसके अंदर काफ़ी सारी अपडेट्स आ जाती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, जिसके ज़रिए है कि आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी सिक्योर हो जाती है। लाइक ये है कि उसके अंदर काफ़ी सारे मीन्स वहाँ पर हैकिंग के जो
एक चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, हैकिंग के वहाँ पर जितने भी थ्रेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी और टेक्नोलॉजीज़ भी होती हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर्स मीन्स अपडेट होते हैं, और डे बाय डे न्यू सॉफ्टवेयर्स अपडेट होते हैं। लाइक वी आर यूजिंग, सबसे पहले मीन्स हमारी कंपनी के अंदर एडवांस्ड एमडी यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसके बाद कैरियो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया। नाउ वी आर यूजिंग टेलको सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ डिफरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर के अंदर फिर ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन मीन्स ये है कि सारा जो आरसीएम होता है वो चल रहा होता है। मीन्स ये है कि प्रोडक्शन टीम प्रोडक्शन चार्जेस बना रही होती है, पेशेंट्स का मीन्स डाटा ऐड कर रही होती है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, एआर टीम जो होती है वो क्लेम्स को फॉलो अप कर रही होती है, पेमेंट पोस्टिंग टीम पेमेंट्स पोस्ट कर रही होती है। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो साइकिल है मीन्स ये है कि चलता रहता है। So the fourth one is work flexibility. Many medical billing positions offer flexibility, including opportunities for remote work or part-time positions. So इसके अंदर काफ़ी work की facility flexibility भी होती है, because you guys can see that this is a totally online work. ठीक है, इस online work के दौरान means ये है कि आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अपना अप्लाई भी कर सकते हैं। Like you guys can वर्क ऑन फाइवर। ठीक है, फाइवर के ऊपर आप काम कर सकते हैं मेडिकल बिलिंग के लेके। अपवर्क के ऊपर काम कर सकते हैं, पीपल पर आर के ऊपर काम कर सकते हैं। मीन्स ऑल द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स यू गाइस कैन वर्क विद दिस मेडिकल बिलिंग। ठीक है, इससे ये है कि आप लोग किसी कंपनी के साथ रिमोट जॉब्स भी कर सकते हैं। लाइक आई एम ऑल्सो वर्किंग अंडर यूएसए बेस्ड कंपनी। ठीक है, मेरी खुद की रिमोट जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ अ गुड टूल and good medical billing, so you guys have to adopt this as your professional career. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स ये है कि आप लोग इसके साथ कुछ और काम भी कर सकते हैं। लाइक ये है कि कुछ पार्ट टाइम इसको अगर आप लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट बिफोर दैट यू गाइज हैव टू पे अटेंशन टू ऑल द लेक्चर्स विच आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो उसको देखें, उसके बाद ये है कि डिफरेंट कंपनीज के ऊपर आप अप्लाई करें, then you guys can be successful inshallah. So the fifth one point is experienced medical billing professionals may advance into supervisory or managerial roles, such as billing managers or revenue cycle managers, where these oversee billing operations. ठीक है, इसके अंदर कैरियर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। लाइक ये है कि आप लोग सर्टिफिकेशंस अगर इसके अंदर करते हैं, ठीक है, अगर सर्टिफिकेशंस करते हैं से उसके बाद ये है कि आप लोगों की रैंकिंग के अंदर इजाफा होता है। ठीक है, उसके बाद यह है कि आपकी डेजिग्नेशंस चेंज होती हैं। ठीक है, आप मेडिकल बिलिंग स्पेशलिस्ट से ये है कि मैनेज सुपरवाइज़र बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं विद द एक्सपीरियंस। That totally depends on you guys, like how much you are going to work and how much you are burning the midnight oil. सो इसके अंदर कैरियर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों की लर्निंग बहुत अच्छी होती है। लर्निंग के साथ साथ ये है कि आप लोगों की कैरियर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और उसी तरीके से ही आप लोगों की सैलरी पैकेजेस भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको बढ़ते जाते हैं। सो मेडिकल बिलिंग इज़ रियली अ ग्रेट प्रोफेशन एंड यू गाइस शुड लर्न दिस वन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। मेडिकल बिलिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेडिकल बिलिंग के अंदर रोल क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। मेडिकल बिलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। दे इंश्योर दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रिसीव प्रॉपर रिइंबर्समेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर टू द पेशेंट्स। यही है कि हाँ भी इसके अंदर जितने भी क्लेम्स बनाए गए हैं, इंश्योरेंस को सेंड किए गए हैं, और इंश्योरेंस से पेमेंट्स रिसीव की जाएं, और जितनी भी क्या कहते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, वो ये है कि टू द प्रोवाइडर ने जो भी सर्विसेज रेंडर की हैं उनकी जो है कि पेमेंट्स वो हैं वो प्रोवाइडर तक पहुंच जाएं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। और इस सारी चीज़ों को कौन मीन्स ये है कि पॉसिबल बना रहे होते हैं। दीज आर द मेडिकल बिलर्स आर द मेडिकल बिलिंग कंपनीज। देयर टास्क इंक्लूड वेरीफाइंग पेशेंट्स इंश्योरेंस कवरेज। वो इंश्योरेंस की जो कवरेज होती है पेशेंट की, कि हाँ भाई वो आया कि इंश्योरेंस के साथ एलिजिबल है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है, ऑन द डेट ऑफ सर्विस। जिस दिन उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड की गई है उस डेट के ऊपर वो एक्टिव था या नहीं था। ठीक है, ये काम करते हैं। क्रिएटिंग एंड सबमिटिंग इंश्योरेंस क्लेम्स को क्रिएट करते हैं और उनको सबमिट भी करते हैं। एंड मैनेजिंग पेशेंट बिलिंग एंड पेमेंट इंक्वायरीज। और पेशेंट की जितनी भी मीन्स ये है कि पेमेंट्स होती हैं या उनकी बिलिंग होती है वो सारी जो है वो मेडिकल बिलर ही उसको देख रहे होते हैं। दे मस्ट आल्सो स्टे अप टू डेट विद इंश्योरेंस रेगुलेशंस एंड कोडिंग चेंजेस टू द इंश्योर्ड कंप्लायंस। मीन उनको अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट ईयरली एनुअली आप लोग कह सकते हैं कि हाँ भी सीपीटी कोड्स के अंदर या है कि आईसीडी कोड्स के अंदर, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के इंश्योरेंस के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आती रहती हैं, ऑथराइजेशन के अंदर चेंजेस आती हैं। सो दीज मेडिकल बिलर्स शुड बी अपडेटेड अप टू डेटेड with these kind of different stuff related to insurance companies. Okay,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैलरी इन द यूएसए एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मेडिकल बिलिंग रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। लेट्स सी, मेडिकल बिलिंग स्पेशलिस्ट, ये एक डेजिग्नेशन है। आई एम ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल बिलिंग स्पेशलिस्ट। सो एंट्री लेवल लाइक ये है कि अगर कोई नया बंदा है जिसके पास इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, बट ही इज़ इन मेडिकल बिलिंग, उसको काफ़ी सारी चीज़ें आती भी हैं। लाइक ये है कि प्रोडक्शन टीम के अंदर यू गाइस कैन से दैट वो एक पेशेंट्स का मीन्स ये है कि डाटा इंटर करता है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसकी एलिजिबिलिटीज लेता है, ठीक है, फिर इंश्योरेंस को कॉल करता है टू वेरीफाई द एलिजिबिलिटी, ठीक है। सो एंट्री लेवल की अगर है तो माइट बी अर्न बिटवीन 30,000 टू 40,000 पर ईयर इन यूएसए। यूएसए के अंदर सैलरीज का जो एक स्केल है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। वहाँ पर ये है कि जाहिर सी बात है यूएसए के हिसाब से ही, उनके डॉलर्स के हिसाब से ही उनको सैलरीज दी जाती हैं, ठीक है। बट इन पाकिस्तान इट कैन कॉस्ट मीन्स इसकी सैलरी कितनी हो सकती है ईयरली, 450K टू 500K, मीन्स 4.5 लाख से 5 लाख के दरमियान। मीन्स ये है कि अगर हम मंथ वाइज देखें तो ये है कि आप लोग मीन्स उससे एंट्री लेवल जो मेडिकल बिलर होता है उसकी 30,000 टू 40,000 में ये है कि पर मंथ हो सकती है, ठीक है। सो बिलिंग मैनेजर की जो पोस्ट है उसके ऊपर उसकी सैलरी कितनी होती है। बिलिंग मैनेजर्स विद सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफन अर्न बिटवीन 60,000 टू 90,000 और मोर पर ईयर डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि हाँ भी आप किस ऑर्गेनाइजेशन से मीन्स ये है कि बिलोंग करते हैं। लाइक ये है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर अगर आपकी जॉब बड़ी है, लाइक ये है कि मैनेजर बिलिंग मैनेजर हैं, तो आप लोगों की सैलरी उस मीन्स ये हिसाब से ही जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एज वेल, मीन्स आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। सो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी मैटर इन दिस काइंड ऑफ अ सैलरी स्केल। In Pakistan, they can earn up to 2.5 million to 3 million annually. मीन्स 25 लाख से 30 लाख के दरमियान उनकी सैलरीज हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली हमारा यहाँ पर हेल्थ केयर जो सिस्टम है वहाँ पर इंश्योरेंस का कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली होती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन यह है कि नॉर्मली यहाँ पर ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंसेस नहीं जाती, यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस दिए जाते हैं, बट इस तरह का एक स्केजुअल्ड सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी बिलिंग कंपनीज काम कर रही होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर काम कर रही होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसी वजह से सैलरीज का जो स्केल है या सैलरीज की जो रेंज है वो थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्या है, सर्टिफिकेशंस। मेडिकल बिलिंग के अंदर आप कौन से सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। होल्डिंग सर्टिफिकेशंस सच एज सर्टिफाइड प्रोफेशनल बिलर सीपीबी फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स एएपीसी और अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस कैन इनहांस अर्निंग पोटेंशियल। अगर आप लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं, अगर आप लोगों के पास सर्टिफिकेशंस हैं इन मेडिकल बिलिंग फील्ड, देन यू गाइस कैन अर्न मोर देन योर थॉट्स। मीन्स ये है कि आप अपनी सोच से या अपनी समझ से कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं, और ये बहुत ही एवर ग्रोइंग और कैरियर ग्रोइंग मीन्स ये है कि फील्ड है जिसके अंदर आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट नोट दैट सैलरी फिगर्स कैन वेरी बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज जियोग्राफिक लोकेशन, द स्पेसिफिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द प्रोफेशनल्स लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। सो मीन्स ये है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये है कि आप लोगों की सैलरी जो है वो वेरी कर सकती है, आप लोगों का एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। कोई लोकेशन के वाइज मीन्स ये है कि जियोग्राफिकल लोकेशन या कि है कि आप किसी छोटे शहर में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा कमाएंगे। लाइक अगर एक आप किसी बड़ी सिटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर और पोस्ट और एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है कि हाँ भी आपकी पोस्ट कौन सी है, ठीक है, एक्सपीरियंस कितना है, सो दैट्स, और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स कितने हैं, वहाँ पर किस तरीके की इंडस्ट्री सैलरी की जो प्रोवाइड करती है तो उसका ट्रेंड क्या है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो अफेक्टिंग योर सैलरी एंड अदर things as well. So this was all about the medical billing. Like we have read that मेडिकल बिलिंग क्या होती है, उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेडिकल बिलर के क्या होते हैं, जॉब्स कौन सी होती हैं मेडिकल बिलिंग के अंदर, उनकी सैलरीज क्या होती हैं, ठीक है। सो और सर्टिफिकेशंस वो कौन कौन सी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेडिकल बिलिंग। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मेडिकल कोडिंग। लाइक व्हाट इज मेडिकल कोडिंग, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल कोडर्स, उसके अंदर कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, उनके स्केल क्या होते हैं, उनकी सैलरीज क्या होती हैं। So we are going to look at that. So first of all, medical coding की definition देखते हैं। Medical coding is a process of translating the details of patient's healthcare encounter into a specific alphanumeric code. These codes are used for documentation, billing, and insurance purposes, ensuring accurate and standardized records of patient's care. ठीक है। मेडिकल कोडिंग के अंदर मीन्स किसी चीज़ को कोड करना, डिसाइफर, ये है कि उनको मीन्स ये है कि चेंज कर देना, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। लाइक ये है कि कुछ डिस्क्रिप्शन थी कि हाँ भी इस बंदे को ये बीमारी है,
ठीक है, उसको हम कोड कर देते हैं आईसीडी के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, वी हैव ऑलरेडी रेड दिस वन इन प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, और कोई भी प्रोसीजर जो कि डॉक्टर या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो प्रोसेस करता है या प्रोसीड करता है टू क्योर द डिजीज ऑफ द पेशेंट, ठीक है, उसको यह है कि हम फिर एल्फ उसको यह है कि फिर सीपीडी के अंदर चेंज कर देते हैं, सेंट करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सो जितनी भी कोडिंग की जाती है टू मेक श्योर दैट द क्लेम इज गोइंग टू बी गुड। ठीक है, क्लेम को बनाने के लिए एक कोई भी जो कोडिंग की जाती है, ठीक है, उसके अंदर फिर ये मेडिकल कोडर्स होते हैं, वो बहुत ही मीन्स ये है कि इफेक्टिव होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को कोडिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस को आईसीडीज़ के अंदर मॉडिफायर लगा रहे होते हैं। ठीक है, उसके साथ ये है कि ये सीपीडी यूज़ कर रहे होते हैं, जितने भी प्रोसीजर्स प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। ठीक है, उनकी ये है कि स्पेसिफिक बुक्स होती हैं। ठीक है, सो उसके दौरान में ये कि कोर्स करते हैं, उसके अंदर सर्टिफिकेशंस भी की जाती हैं। सो इस तरीके से ये सारी जो मेडिकल कोडिंग होती है चल रही होती है। नेक्स्ट सी व्हाट वी हैव, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेडिकल कोडिंग के अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? Medical coders are responsible for translating the details of patients' healthcare encounter into a specific alphanumeric codes. वही है कि हाँ भी मतलब जो उनकी मीन्स है कि कंडीशंस होती हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं किसके अंदर, कोडिंग सिस्टम के अंदर, जो कि अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, मीन्स ये है कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिक मीन्स ये है कि डिजिट्स भी होते हैं। They use code sets like ICD, International Classification of Disease, and CPD, current procedural terminology, as we have already read, to assign codes for diagnosis, ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर। मतलब जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जो भी डायग्नोस किया जाता है, जो भी कोई भी प्रोसीजर किया जाता है, उसको ये है कि आईसीडीज़ के अंदर और सीबीडी के अंदर रिस्पेक्टिवली इनको चेंज कर देते हैं, कोड कर देते हैं। Accurate coding is essential for maintaining and a standardized record of patients' encounters, facilitating communication and among healthcare providers and supporting billing and insurance companies. एक्यूरेट जब कोडिंग की जाती है तो उससे ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, आप लोगों को डिनाइल नहीं आते। ठीक है, आप लोग ये है कि कोई जो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है, सो इजी गोइंग ऑफ आरसीएम इज़ डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल कोडिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि जब तक वो ये है कि कोडिंग सही से नहीं करेंगे, अदरवाइज ये है कि अगर वो कोडिंग के अंदर कोई एरर्स हैं, देन यू गाइज आर गोइंग टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिनाइल्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज एंड डिलेज इन reimbursements. Okay, so they need to do the accurate coding. Next is, what is the importance of medical coding? Accurate billing. Proper coding is essential for healthcare providers to receive accurate reimbursements for their services. Error in coding can lead to delayed payments or claim denials. As we already discussed this one, कि हाँ भी मीन्स जब तक ये है कि कोडिंग एक्यूरेट नहीं होगी तब तक ये है कि आप लोगों का क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ही क्लेम प्रोसेस नहीं होगा, देन यू गाइस आर नॉट गोइंग टू get different kind of a payments for your different claims. Healthcare analytics. Coded data is used in healthcare analytics research and epidemiology to identify disease trends, treatment outcomes and areas for improvement in healthcare delivery. ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं कि हाँ भी पहले कौन सी डिजीज़ थी, उसके अंदर कौन सी नई डिजीज़ आई हैं, उनको टेक केयर करने के लिए या क्योर करने के लिए कौन से नए प्रोसीजर्स यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर यह है कि हेल्थ केयर एनालिटिक्स के अंदर काफ़ी सारे जो आईसीडीज़ हैं या सीपीडी कोड्स हैं, डिफरेंट जो डिजीज़ आई थी उनको अपडेट किया जाता है। डिफरेंट जो सीपीडी कोड्स हैं टू क्योर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ जो कि पहले नहीं थी, फिर कुछ नई डिजीज़ आई, उनको क्योर करने के लिए नए प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं। सो इसके अंदर यह है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं और अपडेट हो रही होती हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस. एक्यूरेट कोडिंग इज क्रूशियल फॉर कंप्लाइंग विद हेल्थ केयर रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग दोज सेट बाय गवर्नमेंट पेयर्स एंड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। अच्छा, ये कि कोडिंग के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ डिफरेंट जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हाँ भी कोडिंग इस तरीके से की जाएगी। लाइक है कि ये डिजीज़ है तो इसके साथ ये कोड लगना चाहिए, ये मॉडिफायर लगना चाहिए। ठीक है, सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसके साथ मेडिकल जो कोडर्स होते हैं उनको एडहेयर रहने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। ओके, नेक्स्ट इज जॉब्स इन मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग के अंदर क्या जॉब्स होती हैं? लाइक एक फर्स्ट ऑफ ऑल द डेजिग्नेशन इज मेडिकल कोडर. The primary role is to assign codes to diagnosis and procedures based on patient's records. Means patient का record आपके पास आता है, उसके अंदर सारी उसकी रिपोर्ट होती है, पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है, फिश रिपोर्ट होती है, कोई भी रिपोर्ट होती है, तो उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि हाँ भी ये प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं, ये डिजीज़ थी इसको। ठीक है, सो जितनी भी डायग्नोसिस होती है उसको आईसीडीज़ के अंदर चेंज कर देते हैं, और जितने प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको सीपीटी के अंदर चेंज कर देते हैं। Medical coders work in various healthcare settings, including hospitals, क्लिनिक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। मीन्स ये है कि वो हॉस्पिटल के अंदर भी काम करते हैं, जाहिर सी बात है जितनी भी हॉस्पिटल की बिलिंग होगी या कोडिंग होगी उन्होंने करनी होती है, क्लिनिक के अंदर भी करते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर भी करते हैं टू वेरीफाई डिफरेंट काइंड ऑफ क्लेम्स।
ओके। मेडिकल कोडिंग ऑडिटर, एक मेडिकल कोडिंग ऑडिटर की जॉब होती है। दीज प्रोफेशनल्स रिव्यू एंड ऑडिट कोडेड पेशेंट रिकॉर्ड्स टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद कोडिंग गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये मीन्स रिव्यू करते हैं कोड्स को। ठीक है, यहाँ पे आया कि ये कोड्स ठीक हैं कि नहीं है, जो कोडिंग मीन्स आर रेलेवेंट टू द डायग्नोसिस आर नॉट। मीन्स जो बीमारी थी उसके लिए जो भी प्रोसीजर यूज़ किया गया है, आया कि वो उससे रेलेवेंट है कि नहीं है। मीन्स ये है कि अगर कोई बीमारी थी सर दर्द की, मीन्स एक हेडेक है और उसके अंदर जो प्रोसीजर यूज़ किया गया है वो कोई एब्डोमिनल पेन को यूज़ करने की, मीन्स ये है कि उसको प्रोसेस ठीक करने के लिए किया गया है। सो दैन दिस वुड नॉट बी गोइंग टू हेल्पफुल in submitting the claims to insurance. So this claim would be going to be rejected. So वहाँ पे रेलेवेंस होनी चाहिए, उनका ऑडिट होना चाहिए, उनको रिव्यू करने वाले होने चाहिए कि हाँ भी आया कि जो भी आईसीडी कोड्स यूज़ किए गए हैं डायग्नोसिस कोड्स के साथ, ठीक है, वो ठीक होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज कोडिंग मैनेजर। यहाँ पर कोडिंग मैनेजर की एक जॉब होती है। कोडिंग मैनेजर ओवरसी कोडिंग टर्म्स, इंश्योर कोडिंग क्वालिटी एंड मैनेज कोडिंग रिलेटेड प्रोसेसेस इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। जो कोडिंग मैनेजर होता है वो जाहिर सी बात है उसकी एक नेक्स्ट या अपर लेवल की पोस्ट होती है, वो सारी रिव्यू कर रहा होता है चीज़ों को कि हाँ भी जितनी भी कोडिंग की जा रही है, जितनी भी कोडिंग टीम बैठी है, आया कि वो कोड ठीक से प्रोसेस कर रही है कि नहीं कर रही, कोड सही से लगा रही है कि नहीं लगा रही। एंड मैनेज कोडिंग रिलेटेड प्रोसेस, और कोई भी कोडिंग रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको ठीक से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। Educator and trainers. Some experienced coders become educators or trainers, teaching coding techniques and guidelines to aspiring coders. मीन्स कुछ ऐसे जो एजुकेटर हो, मीन्स ये है कि कुछ नए लोग होते हैं जिनको कोडिंग का शौक होता है, तो उसके अंदर कुछ एजुकेटर की या ट्रेनर की भी जॉब्स होती हैं, जो कि यह है कि जिनको ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भी मेडिकल के अंदर कोडिंग कैसे यूज़ की जाती है, आईसीडीज़ को देखते हुए किस तरीके से हम सीपीटी कोड्स प्रोसेस करते हैं, कौन कौन से उसके अंदर मॉडिफायर लगाए जाते हैं। ठीक है, सो ये जो सारी सारी चीज़ें होती हैं ये एक एजुकेटर और ट्रेनर भी कर सकता है। ओके। सो सैलरी इन द यूएसए। मेडिकल कोडिंग की जो बेसिकली सैलरी है वो यूएसए के अंदर क्या होती है। ठीक है, मेडिकल कोडर, entry level medical coders might earn between 35,000 to 45,000 per year. Experienced coders with certifications, example given CPC, and several years of experience could earn 50,000 to 70,000 or more annually. ठीक है, ये जो डाटा है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल रीजन। ओके, सो ये सारी, और डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ठीक है, और ये है कि आल्सो डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मीन्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी उसके अंदर जितने जो पोस्ट होगी, जाहिर सी बात है उसकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो उसकी ये है कि सैलरी इस हिसाब से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यह है कि एंट्री लेवल की एक जो जॉब होती है उसकी एनुअली 35,000 टू 45,000 या नियर अबाउट 50,000 यू गाइस कैन से दैट उसकी होती है। मीन्स 4 से 5 हज़ार जो डॉलर्स है वो पर मंथ सैलरी होती है। मेडिकल कोडिंग ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर कैन tend to earn higher salaries, often in the large range of 60,000 to 90,000 or more, depending on the experience and expertise. अच्छा, मेडिकल कोडिंग जो ऑडिटर होता है, जो मीन्स ऑडिट कर रहा होता है चीज़ों का, मीन्स वो चेक कर रहा होता है, रिव्यू कर रहा होता है ऑडिट कोडिंग सिस्टम को, तो उसकी जो सैलरी होती है वो जाहिर सी बात है ज़्यादा होती है। ठीक है, वो कितनी है, 60,000 टू 90,000 के दरमियान कहीं हो सकती है, और मोर देन दिस डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द मेडिकल ऑडिटिंग कोडर। ठीक है, कोडिंग मैनेजर कितनी हो सकती है। कोडिंग मैनेजर्स जनरली हैव हायर earning potential with salaries ranging from 70,000 to $120,000 or more, depending on the size and complexity of the healthcare organization. कौन सी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बंदा काम कर रहा है, ठीक, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, उसके ऊपर से पोस्ट कोडिंग मैनेजर की है, तो ये है कि वो मोर देन $1 लाख पर ईयर कमा सकता है। ओके। Next is the additional information. Obtaining certifications such as the Certified Professional Coder CPC credential from the American Academy of Professional Coders AAPC से आप ये certification कर सकते हैं, और the Certified Coding Specialist CCS credential from the American Health Information Management Association AHIMA से अगर आप लोगों ने ये certifications की हैं like CPC, CSS, ठीक है, can significantly enhance earning potential and career prospects in medical billing. तो इससे ये है कि आप लोगों के अर्निंग के जो फैसिलिटी है कि अर्निंग की जो रेंज होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास सर्टिफिकेशंस हैं, देन यू गाइस कैन अर्न एंड लर्न मोर। ठीक है, आप लोग इससे ये है कि काफ़ी सारी और भी चीज़ें सीख सकते हैं, और उसके साथ ये है कि आप लोगों की जो सैलरी की होगी वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी जब आप लोग ये सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेशंस कहाँ से कर सकते हैं, एएपीसी से कर सकते हैं। ठीक है, जो सीपीसी है
वो अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और CCS जो है, ठीक है, AHIMA, यहाँ सर भी आप लोग सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। So this was all about medical billing and medical coding. What are the key differences between medical billing and medical coding? So it's totally explained in this one. What would be the salaries of these members, means different kind of a posts which are in the medical billing and medical coding. What are their different roles? We have already discussed this all stuff in this medical billing and medical coding lecture. So this was all about today's lecture. I hope you guys have learned more about this one. So inshallah we'll meet in the next lecture with different kind of a stuff in medical billing, and I'm just going to launch different kind of basic courses in my next lectures as well, like the customer supports, like you guys can say that calling center, means call center के अंदर किस तरीके से जॉब की जाती है, वहाँ पर यह है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर आप कॉल सेंटर की जॉब कर सकते हैं टू इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए आई एम ऑल्सो जस्ट गोइंग टू लॉन्च डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्लिश कोर्सेज, ठीक है, जिसके अंदर यू गाइस कैन जस्ट लर्न लाइक हाउ टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेज इन योर डेली लाइफ, ठीक है। आप किस तरीके से अपनी डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। And we are also going to launch different kind of other courses as well. These are in the pipelines. So inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and of your family. Stay blessed, stay safe. Take care. Allah Hafiz.